हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं आपको सेकंड टिप देने जा रहा हूँ ऑन हाउ टू क्लियर योर ऑल इंडिया बार एग्जाम 20। तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एआईबी में पूछा जाता है और जो आप अपने बैरक से इजीली फाइंड आंसर कर सकते हैं, दैट आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ईयर ऑफ द एक्ट। Second type of question is based on the questions which you will be able to answer from your barrack is the year in which the act came. Let's take few example. Question 1. In which year Indian Evidence Act came? Option A 1870, option B 1872, option C 1874 and option D 1876. Again, in this type of questions, they have given you the hint of the name of the act, that is Indian Evidence Act. So what you need to do is directly go to that act, directly go to the Indian Evidence Act, and you can see the year in which it came, that is 1872. So when you go to the option, you can see option B is the right answer. तो आपको क्या करना है, इंडियन एविडेंस एक्ट के बैरक में जाना है। कवर पे भी आपको उसका ईयर दिख जाएगा, या फिर अगर आप बैरक भी खोलोगे तो बैरक में भी आपको उसका ईयर दिख जाएगा, कवर पेज पे या फिर फर्स्ट पेज पे भी। बट जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनफोर्समेंट ईयर नहीं पूछा है ना। अगर एनफोर्समेंट ईयर है तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर एनफोर्समेंट नहीं पूछा है तो बैरक में जो भी ईयर आपको कवर पेज पे दिख रहा है, दैट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल whether they are asking the enforcement year. If they are asking enforcement year, the answer would be different, but they will mention the enforcement year in the question itself. But if the enforcement year has not been mentioned in the question, that means they are simply asking the year in which that act came or was introduced in the parliament. So the answer is 1872, which has been which would be given in the cover page of the act itself. Second question, in which year Companies Act came? Option A 2009, option B 2010, option C 2012, option D 2013. Again, they have given you the hint Companies Act. So you directly go to the barrack of the Companies Act, and there in the very front page you can see it was introduced in the year 2013. So whichever the option will be 2013 will be your answer. Now again, there are two Companies Act. Companies Act 1956 as well as Companies Act 2013. But you can see 1956 has not been given in the answer in the options. So they will not give any such options in which there are two correct answer. So there is only one correct answer, that is 2013. कंपनीज एक्ट जो है 1956 में भी आया है और 2013 में भी आया हुआ है। अब देखो ऑप्शन में वो दो सही आंसर नहीं देंगे, तो अगर 1956 वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो 2013 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी केयरफुल कि वो कौन से साल का पूछ रहे हैं। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम केम इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। अगेन बैरक पे डायरेक्ट चले जाइएगा, उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको हिंट दिया हुआ है बीएसए एक्ट। बीएसए एक्ट पे चले जाते हैं। बीएनएस है, बीएसए कहाँ चला गया? हाँ, बीएसए एक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 2023। तो जो भी ऑप्शन आपको 2023 दिख रहा है, दैट इज सी, दैट इज योर राइट आंसर। अगेन अगर एनफोर्समेंट पूछा होता तो 2024 करेक्ट आंसर होता,
ऑप्शन डी। बट यहां पे एनफोर्समेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, तो इसमें ध्यान रखिएगा। एनफोर्समेंट would be provided to you in the question. If not, then you simply have to write the year in which it was introduced in the parliament. I'm sorry. अब ये आप कमेंट्री सेक्शन में अपने आप फाइंड करके आंसर लिख सकते हैं। In which year Arbitration and Conciliation Act came? Option A 1992, option B 1996, option C 2000, and option D 2004. In which year Negotiable Instrument Act came? Option A 1861, option B 1871, option C 1881, and option D 1891. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is BNSS, came in which year? Option A 2024, option B 2023, option C 2022, and option D 2021. अगेन यहां पे देखो एनफोर्समेंट नहीं मेंशन किया गया। एनफोर्समेंट होता तो ऑप्शन ए सही होता है, अगर एनफोर्समेंट नहीं है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखो दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए, बोथ द ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड इन द ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, बट ओनली वन विल बी द राइट आंसर। एनफोर्समेंट वर्ड नहीं मेंशन किया गया है तो 2023 इज द राइट आंसर। अगर एनफोर्समेंट दिया होता तो 2024 वुड बी द राइट आंसर। द भारतीय न्याय संहिता केम इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2020। Code of Civil Procedure came in which year? Option A 1905, option B 1908, option C 1912, option D 1921। तो अगेन मैं रिकैप कर लेता हूं, ये टिप 2 था, विच आर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ द एक्ट। ये हर साल 1 या 2 मार्क में पूछा जाता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर एनफोर्समेंट वर्ड है तो सेक्शन 1 में उसका ईयर का आंसर आपको मिल जाएगा, बट अगर एनफोर्समेंट नहीं मेंशन किया गया तो बैरक में जो ईयर आपको ये एक्ट के नाम के साथ दिया गया वो आपका आंसर है। वापस में एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट है, अगर एनफोर्समेंट नहीं पूछा गया, इंडियन एविडेंस एक्ट है, एनफोर्समेंट नहीं पूछा गया तो 1872 आपका आंसर है। बट अगर आपको एनफोर्समेंट ईयर पूछा गया है, हालांकि इसमें सेम है, बट बीएनएस एक्ट या बीएसए एक्ट अगर आप देखें, बीएनएसएस है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस 2023 में किया गया है, बट अगर हम लोग एनफोर्समेंट ईयर की बात करें तो वो 2024 है। सो मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एनफोर्समेंट ईयर पूछा गया या इंट्रोडक्टरी ईयर पूछा गया, अकॉर्डिंगली यू राइट द आंसर। ठीक है, थैंक यू।